वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। कि मस्तक ते ध्यान लाना। Let's focus at the forehead, please. कि गुरु रामदास जी कहते सतगुर नाम दृढ़ाए अत मीठा मीठा। The true Guru urges me to keep the sacred word Vaheguru, which is so sweet. ये समझना कहानी बहुत ऊंची है, कहानी बहुत डूंगी है। क्यों दा नाम बहुत मिठा है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਮਿੱਠਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। His utterances to be blessed, to listen to his utterances, to sing his utterances, these are not ordinary events. Only those
can understand or feel. This is the last most beautiful blessing of the divine. ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਨਾਮੇ ਸੁਰਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਹਿ ਦਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਤ ਦੀ, ਮੇਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾਮੇ ਸੁਰਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਦਹਿ ਦਿਸ। ਸੁਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਵੱਜਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਫਿਰ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਚਾਲ ਚ ਫੇਰੇ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੇਦ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਸੁਰਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਹਰ ਮੁਸਕੀ ਮੁਸਕ ਗੰਧਾਰੇ। ਸੁਰਤ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ। ਨਾਮੇ ਸੁਰਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਦਹਿ ਦਿਸ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਸਤਕ ਮਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਇਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ।
हर मुस्की मुस्क गंधा तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी। निर्गुण कथा। महाराज जी कहते जिहड़े तेरे बोल हैं ये दुनियावी बोल नहीं, जो तू गल करदा है दुनियावी गल नहीं है। ये गल बहुत उच्ची है, ये गल बहुत डूंगी है, ये गल बहुत विशाल है। दुनियावी लफ्ज इहदे लागे नहीं आ सकते। Your story, oh my beloved, is well beyond the worldly stories. तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी, गुरनी के बचन समारे। महाराज जी कहते गुरु बहुत ही कीमती, नेके, नेक। गुरु के बचन बहुत ही नेक, बहुत ही उच्चे। ते कहते उन्हां बचनां नूं गुरु कहता याद रख, समारे। गुरनी के बचन समारे। That the utterances of the Guru are so sacred, are so noble, are so pure. And the Guru says that keep these words in your consciousness. Means what? की मतलब है? नेके, ये बहुत नेक लफ्ज है। आपां भी बोलते हैं जी, आपां नूं महाराज जी जिंदगी जीण दा ढंग दसदे हैं। आखदे हैं तेरे बोल किस तरह दे हैं। मैडिटेशन जदों आपां नूं हुंदी है तजर्बे ते आपां नूं चंगा चंगा जिहा महसूस हुंदा, पर असल कहानी सिर्फ वो एक्सपीरियंस करना नहीं है। असल कहानी है सुरती दा बदलना। वो परमात्मा दे नाल जुड़ के हुंदी, और सुरती बदलती है तो अपनी नज़र बदलती है। सुरती बदलती है तो अपनी जबान बदलती है, लफ्ज बदलते हैं। सुरती बदलती है, अपने कान बदलते हैं, सुन दा ढंग बदलता है। सुरती बदलती है, अपना सुभाव बदलता है। लफ्ज़ां दी गुरनीके बचन ये बहुत ही वड्डी गल है। नीके बचन समारे। गुरनीके बचन समारे। गुरनीके बचन समारे।
ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮੇ ਸੁਰਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਦਹਿ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇੱਕ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਸਦੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲੀ। उन्नीवीं पौड़ी में गावत गावत हर गुण गाए। पहला शायद आपां कदी सोचिया ही ना होवे, हुण आपां नूं समझ आऊ कि महाराज जी कहंदे एवें दुनिया च उठ के ते आके गाउण लग जाना, ये गाउणा नहीं है जिन्नू असीं कहंदे हां। इत्थे बहुत चिर गाउंदियां 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 फिर पता लगदा है कि आ गाउणा। गावत गावत हर गुण गाए, बहुत चिर गाउंदे रहन नाल फिर पता लगदा गाउणा किस तरह है, गाउणा कहानी की है। गावत गावत हर गुण गाए। गाउन दा मतलब कोई बहुत तर्ज की गल नहीं हुंदी जी। गाउणा सुरती दी हालत की है जिहड़ी गा रही, वो मतलब है। गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुर निस्तारे। कहते जिन्हों वो गाउणा आ जाता, वो गाउणा परवान हुंदा। महाराज जी says those who come to understand what singing is, the singing bird sings, कोयल गाउंदी, उत्थों पता लगदा गाउणा की है। कोयल दा ना गुरबाणी विच है, उहदे जिस्म दा रोम रोम गाउंदा है। छोटी जी है वो, ते जदों कहंदी कुकू कू तो उहदे पैरां दे नोहां तो लैके सिर दी चोटी तक कल्ला कल्ला रोम आखदा है कुकू कू। ये नहीं कि वो आप किते
कोई सोच रही तो मुंह को नहीं, नहीं। जी 19वीं पौड़ी विच महाराज जी कहते असंख नाम असंख धाम असंख नाम उत्थे डूंगा मस्तक ते डूंगा डुबना जी। Please let yourself sink deep into that point in between the eyebrows. असंख नाम असंख धाम असंख नाम असंख धाम। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਣਗਿਣਤ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੇ ਕਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾ। ਸੁਭਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਰੀ ਜਾਂ ਹਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਜਾਂ ਹਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ? ਹਰਿਆ ਰੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ गई। क्या जो जिंदगी है सारे बूटे का बूटियां दरख्तां विच, ये जिंदगी ही परमात्मा है। ये जिंदगी ही परमात्मा है। एक उहदा नां हर। हाँ जी, सो कहंदे उहदे नां गिने नहीं जा सकते। हाँ, कोई ना है कृपालु। कृपालु लफ्ज आया तो अपने सामने कोई बहुत प्यारा वाला चेहरा आऊगा कि जिदा अंदर बहुत ही दयालु हो। ये चीज़ां ते महाराज जी दस रहे, परमात्मा बारे गल हो रही। पर की गल इत्थे ही है। कल असीं जिस स्कूल दे कमरे विच संगत दे दर्शन कर रहे सां, उत्थे एक फ्रेम दे विच ईडिथ समथिंग बीबा दा नां सी, जिन्ने कहा सी किते लिखिया होया सी कि उन्हें कहा कि
मैनू समझ आई है कोई गल समझन वास्ते लफ्ज़ ही समझने जरूरी नहीं, लफ्ज़ां दे विच जो खाली जगह है वो समझनी जरूरी है। बहुत बहुत वड्डी गल, जिन्हों ये गल समझ आ गई। हुण इत्थों जब आपां भी जी बच्चों के नां रखते हैं, नां का मतलब हुंदा है जदों कोई नां लईए उत एक चीज सामने उठ के आवे कि आ है हरि, आ है कृपालु, इस तरह का मुख। बच्चों के नां रखते हैं जी, बच्चे छोटे होंदे उन्होंने तो कुछ पता भी नहीं, पर आपां नूं बहुत जागना चाहिए है कि जदों बच्चे का नाम या कोई भी नाम लवांगे उस वक्त एक चीज हर एक दे अंदरों उठ के आनी है कि इहदा नाम आ है। किसी का नाम पै जाता वो साधु है, किसी का नाम पै जाता चोर है, ना ही है ना। तो जदों आपां जी बच्चों के नाम रिंकू टिंकू मिंकू, हसन वाली गल नहीं है, रखे हुए हैं आपां इन्हां बच्चों के कि अपने सामने उठ के की फोटो बनती है टिंकू मिंकू दी। ये सिर्फ जो चीज़ां जो इन्हां अखरां दे विच खाली जगह है उन्हों समझना जरूरी होता। रब की गल करके नां की गल की थी, पर ना सिर्फ रब का उत्थे नहीं रह गया, अपनी जिंदगी विच नावां दा की मतलब है। असां फिर कहंदे अखरी नाम अखरी सलाह, कहंदे अखर ही हन। किसी का नाम अखर ही हुंदे ना, तो कहंदे वो अखरां दी सारी कहानी है, क्योंकि अखर बोल के या अखर सुन के अपने सामने एक फोटो आनी है। तो जदों आप बच्चों के नाम रखते जी, अपने सामने फोटो, किसी का नाम जी नारायण सिंह, नारायण फोटो आओ। एक स्टोरी भी आती है, फिर करेंगे थोड़ा लम्बी। सो बहुत जागना है जी, अपने लफ्ज वो होने चाहिए हैं जेड़े लफ्ज रब वरत सके। Our language, our words should be such that the God can use that. अखरी नाम अखरी सलाह, कहंदे अखर ही हन जदों वाहिगुरु आखदे हैं, अखर ही हन सारियां दे सामने हन, पर कित्थों आउंदे हन किसी दे अंदरों जदों आखदा है वाहिगुरु, उत्थे सारी कहानी है, सारी कहानी उत्थे। गावत गावत हर गुण का, कहंदे जो कहंदे सिर्फ उत्थों तक ही नहीं रहना जी, उसनूं खोलना, वो तो एक दरवाजा है, वो दरवाजा खोल के अंदर जाना। तां असीं कह रहे हैं कि गुरबाणी दा किसी दी जिंदगी विच आन हाजिर होना, इस तो वड्डी कोई घटना हो रहा है।
क्योंकि इसे चीज नहीं सतगुरु मिलाना, इसे चीज नहीं रब मिलाना, इसे नहीं। अखरी लिखण बोलन बान। अखरी अपन लिखते हाँ जदों एक दूजे नूं लिखते हाँ, अखरी बोलते हाँ। की दस रहा? कहते जदों तू किसी नूं कुछ लिखन लगदा हुन्ना, सोची रब ये लफज वरतूगा, तू वो लफज वरती जिहड़ा रब वरत। जे किसी ने बोलेगा तो बोली सोच के कि की रब किसी ने इस तरह बोलूगा। अखरी लिखन बोलन बान। महाराज जी saying that remain awake when you write something to somebody. Check it out. Would God use these words to talk to you or to talk to somebody? Would He write to someone the words which you are writing? अखरी लिखण बोलन बाण, अखरां सिर संजोग वखान। महाराज जी कहते जिन्होंने बोलना आ गया, तो बोलना किन्ना नूं आउंदा है जी? ये कोई सीखण वाली गल नहीं। सुरती दी बदलन नाल अपनी बोल बदलते ना। हाँ जी, हाँ। ये चीज़ां किसी दुनियावी स्कूलों में सीखण वालियां नहीं हैं। महाराज जी कहते जिहदी सुरती पहुँच गई किते, उहदे बोल भी बदल जाने, उहदा सब कुछ बदल। उन्हें जदों वही लफ्ज कहना है वाहिगुरु, वो लफ्ज बहुत दूर तक जाऊ। अखरां सिर संजोग विखान। कहते जिन्होंने समझ आ गई कि अखरां दे विच कितनी पावर है, अखर एवें किवें नहीं हैं, इन्हां दे विच कितनी पावर है। अखरी हन जिहड़े बोल के आपां किसी नूं दोस्त बना सकते हैं, अखरी हन जिहड़े बोल के आपां किसी नूं दुश्मन बना सकते। अखरां च इन्नी पावर। अखरी सिर संजोग विखान। कहते अखरां च इन्नी पावर कि ते रब नूं मिला दिंदे, ते रब नूं मिला दिंदे। हाँ जी। Maharaj ji says the words are so powerful because words contain your emotions. क्योंकि लफ्ज दे विच तुहाडियां भावनावां हन। उस लफ्ज जो आपां बोलदे हां उन्हां दे विच अपनी सुरती समाई हुई है। कि उस सुरती विच प्यार है, हलेमी है, हमदर्दी है, लफ्ज तो ही। हाँ, पर सुरती केड़ी बोल रही है, वो फर्क है। वो प्यारा नाल आपां नूं गालां भी कढदे, किते कहंदे सरपणे गधड़े सारे कहंदे तुसीं सप हो, तुसीं गधे। पर आपां नूं गुस्सा थोड़ा आया, हासा ही आया ना, ते असीं बड़े वधिया बंदे। अखरां नूं समझना जी। ज्यों ज्यों आपां बंदगी अपनी वधदी त्यों त्यों अपना बोलन दा लहजा
ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, अपनी सुरती का सुभाव है खामोश रहना, किसी डूंगे आनंद विच रहना, जो अपना असली आपा। तार महरम दियाई के बाद बान खोल दियो। I have just received a telegram from my beloved that let the sailcloth rolled down, untie the boat, put the boat in his hands,